चलो यार, लेट्स स्टार्ट. चलो, गिव द हेडिंग. चलो, वी आर स्टार्टिंग विद मैथ्स 1 का सेकंड टॉपिक, दैट्स मैट्रिसेस. नहीं होएगा. चलो, लिसन नाउ. थियरी बुक में आओ. स्टार्ट विद द हेडिंग मैट्रिसेस. लिखो मैट्रिसेस. चलो यार, सेटल डाउन फास्ट. लिखो an arrangement of numbers, an arrangement of numbers, an arrangement of numbers, an arrangement of numbers into rows and columns, an arrangement of numbers into rows and columns enclosed between square brackets, enclosed between square brackets, is called a matrix, is called a matrix. A matrix itself, a matrix itself does not have any value. A matrix itself does not have any value. Full stop. Next line में matrix are denoted by, matrix are denoted by capital letters. Matrix are denoted by capital letters. And the elements inside the matrix, and the elements inside the matrix are denoted by small letters, are denoted by small letters. Example: A is equal to matrix A B C D. चलो, हाउ डू यू रीड दिस? सबसे पहले लिखो नेक्स्ट लाइन में, इट इज रेड एज, इट इज रेड एज, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, वर्डिंग्स में लिखेगा A is a matrix of, A is a matrix of elements A B C D. A is a matrix of elements A B C D. You basically read it that way. Inverted commas close, full stop. Next line में लिखो elements A comma B belongs to, ये होता है रो 1,
belongs to row 1. फिर elements C, D belongs to row 2. So this is your row 2. Is that clear? फिर elements A, C, elements A, C belongs to column 1, that is C1. फिर elements correct B, D belongs to column 2, that is C2. So it is basically arrangement of numbers into rows and columns. Is that clear? Yes or no? लिखो नाउ. नेक्स्ट लाइन में यू विल राइट नाउ. ये आई थिंक बहुत सारे लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किया है, किसी ने नहीं किया है. डजेंट मैटर, इट इज वेरी सिंपल. लेकिन हमारा पावरफुल पार्ट क्या होना चाहिए? लिसन, सुनो. ये रोज कॉलम्स हमने डिटर्मिनेंट्स में भी किया था. तो सबसे पहले तुमको पोजीशन सबसे पहले पावरफुल होना चाहिए ना. इफ आई टेल यू व्हाट इज एलिमेंट ए, तो तुम क्या बोलेगा? इट इज एन एलिमेंट. लेकिन कौन सा रो और कौन सा कॉलम? हाँ, तो यू विल राइट लाइक दिस. एलिमेंट ए इज एट पोजीशन A11. What is the meaning of A11? Small A11 मतलब small letters are represented for elements. 11 मतलब first row and first column. फिर element B is at position. चलो B का position क्या है? A ही रहेगा. First row and second column. तो you will write A12. यही रखने का. फिर एलिमेंट सी इज दैट पोजीशन ए. ये मालूम होना चाहिए परफेक्टली. इसको पावरफुल करो, बाकी सब इजीली हो जाएगा. डी इज दैट पोजीशन A22. क्लियर है? तो नेक्स्ट लाइन में लिखो हेंस नोटेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इज स्मॉल aij. notation of position of element is small aij. तो नेक्स्ट लाइन में लिखो aij means element of ith row and jth column. Element of ith row and jth column. Is that clear? Yes or no? फिर नोट करके फर्स्ट पॉइंट. नोट करके फर्स्ट पॉइंट. लिखो अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज फॉलोज. अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज फॉलोज. अभी मैट्रिक्स को शॉर्टकट नोटेशन में डिनोट कैसे करेगा वो लोग? You'll write like this. लिखो ये मैट्रिक्स का नोटेशन है. क्लियर? हाउ डू यू रीड दिस? लिखो लिखो. It is read as our
A is a matrix of elements Aij. A is a matrix of elements Aij of order R into C. Is that clear? Next line में लिखो R into C is called order of matrix. R into C is called order of matrix. मतलब हमेशा हम लोग सबसे पहले क्या लिखेगा? रोज. एंड फिर तो R stands for number of rows. C stands for number of columns. Is that clear? मतलब मैट्रिक्स को देखने का तरीका कैसा है? अगर तुम्हारे सामने मैट्रिक्स है तो तुम हॉरिजॉन्टल देखेगा एज वेल एज वर्टिकल देखेगा. ध्यान रखो, ये बहुत काम आएगा आगे जाके. चलो नोट नंबर 2. Matrix and determinant are different. Matrix and determinant are different and not the same. Matrix and determinants are different and not the same. अभी डिफरेंस क्या है तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, सेम पॉइंट नेक्स्ट लाइन में. In determinant, we can calculate its value. In determinant, we can calculate its value. But matrix has no value. Matrix has no value. ये पहला मेजर डिफरेंस है. डिटर्मिनेंट में तुमको फाइनल वैल्यू मिलता है. इज दैट क्लियर? मैट्रिक्स में वैल्यू नहीं मिलता, मैट्रिक्स ही मिलता है. क्लियर? नेक्स्ट लाइन में लिखो इनडिटर्मिनेंट कॉमा नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. इसलिए 11th स्टैंडर्ड में हमने दो ही पैटर्न पढ़ा, दैट इज 2/2 और 3/3. डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 या ऑर्डर 3, मतलब रोज एंड कॉलम्स सेम ही होना चाहिए डिटर्मिनेंट में, कंपलसरी, तो ही हम कैलकुलेशन कर सकते हैं. तो नेक्स्ट लाइन में लिखो बट इन मैट्रिक्स देयर इज नो सच कंडीशन. बट इन मैट्रिक्स देयर इज नो सच कंडीशंस. लिखना है भाई. चलो, मतलब मैट्रिक्स में तुम्हारा नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अलग अलग हो सकता है. इज दैट क्लियर? यस और नो? एनी डाउट्स इन दिस? गिव द नेक्स्ट हेडिंग एज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ये ध्यान से लिखो, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारा आएगा. चलो, सबसे पहले रो मैट्रिक्स. सबसे पहले रो मैट्रिक्स. अंडरलाइन करो, लिखो अ मैट्रिक्स इन विच there is only one row. A matrix in which there is only one row, irrespective of number of columns. Irrespective of number of columns. Is called row matrix.
Is that clear? चलो, example. A is a matrix of 1 B 3. मिक्स में लिखो तो समझ में आएगा. इधर कितना रोज है? 1 row and 3 columns. नहीं, इट इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. स्टार्टिंग में लिखो, बाद में जरूरत नहीं है. इज दैट क्लियर? इवन वी कैन से B इज इक्वल टू मैट्रिक्स 5. ये भी रो मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 1 रो और मतलब एक रो हुआ तो वो रो मैट्रिक्स हो सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स. हो सकता है ना, तो उसमें भी लिखेंगे. क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में लिखो, द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय. द ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय, मतलब वी आर राइटिंग नोटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स, जो ऑब्जेक्टिव में तुमको पूछेगा. मैट्रिक्स कोई भी कैपिटल लेटर से डिनोट हो सकता है. उसका एलिमेंट्स कैसे डिनोट होता है? स्मॉल ए, और ये लिखेगा वो लोग 1 into n. दिस इज नोटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स. ऐसा लिखो. मतलब वो लोग तुमको एमसीक्यू में ये नोटेशन देगा और ऑप्शन में दिया रहेगा कि कौन सा मैट्रिक्स है. तो यू शुड नो दिस इज नोटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स. कैसे पता चलता है? ऑर्डर से 1 into n, 1 row and n number of columns. So this becomes notation of row matrix. This is important. Clear है? Yes or no? चलो next, second one. Column matrix. Column matrix. चलो लिखो, a matrix in which there is only one column. A matrix in which there is only one column, irrespective of number of rows. Irrespective of number of rows. Example, A is equal to 1B3. तो ये हो जाएगा 3 rows and 1 column. Example, B is equal to matrix of 5. So this is also 1 by 1. That can be also considered as column matrix. लिखो, नोटेशन. चलो नोटेशन क्या आएगा? A is equal to matrix of elements Aij with order. Don't write n, write m. M into 1. M represent rows, n represents column. Clear है? Yes or no? Next, third, zero matrix. Zero matrix, a matrix in which all elements are zero. A matrix in which all elements are zero is called zero matrix or null matrix. Zero matrix or null matrix, irrespective of order of matrix. Irrespective of order of matrix. Clear?
It is generally denoted by. It is generally denoted by. इन्वर्टेड कॉमास में लिखो लेटर ओ. Example, O can be written as 0, 0, 0, 0. Yeah, 0 can be written as 0, 0, 0, 0, 0, 0. This is 2 by 2, this is 2 by 3, and so on. Clear? Important ये नहीं है, इसका नोटेशन कैसे आएगा. अभी सुनो हाउ टू डू द नोटेशंस. A is equal to matrix of element small aij. इसका ऑर्डर आएगा m इंटू n. मतलब अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम वैल्यू हो जाएगा mn, नहीं है तो अलग भी हो सकता है. सच दैट, आगे लिखने का. अभी इसमें कंडीशन क्या है, सब एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, such that aij is 0. तो दिस इज द नोटेशन फॉर जीरो मैट्रिक्स. ये मालूम होना चाहिए. वो लोग नोटेशन में बात करेगा ऑब्जेक्टिव्स में, तो हमको पता होना चाहिए. चलो, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, fourth one, rectangular matrix. Rectangular matrix. लिखो, a matrix in which कॉमा करके इन्वर्टेड कॉमास में लिखो, नंबर ऑफ रोज is not equal to number of columns. Number of rows is not equal to number of columns is called rectangular matrix. Is called rectangular matrix. Clear? Example, A is equal to matrix of 1, 2, 3, 4, 5, 6, which is 2 rows and 3 columns. मतलब number of rows और number of columns same नहीं होगा, proper rectangle shape आएगा. Is that clear? इसका notation important है. Please learn the notation format in matrix. That is really very important. How do you denote this now? Starting तो same ही रहेगा. A is equal to matrix of elements small aij of order m into n, such that m is not equal to n. One rows is not equal to columns. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. क्लियर? यस और नो? लॉजिक समझ में आया इसका, नोटेशन का? नेक्स्ट, फिफ्थ वन, स्क्वायर मैट्रिक्स. मार्क करो, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको लिंक में आके 3-4 मैट्रिक्स है. और square matrix, लिखो, a matrix in which inverted commas में number of rows is equal to number of columns. A matrix in which number of rows is equal to number of columns is called a square matrix. Is called a square matrix.
तो A is a example. A is a matrix of 1, 2, 3, 4, which is 2 rows, 2 columns. It can also be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, which is 3 by 3. 4 by 4 कैलकुलेशन में नहीं आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है. नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. क्लियर है इतना? यस और नो? एनी डाउट्स? ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस. हाँ, नोटेशन. चलो पहले नोटेशन क्या आएगा? A is equal to matrix of element Aij M into M लिखने का खाली, और A is equal to matrix of element Aij such that it is N into N. हो गया ना? ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स. एलिमेंट्स कुछ भी होने दो, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स होना चाहिए. तो उसके लिए अलग से m इक्वल टू n करेगा ऐसा जरूरी? अगर m और n में दिया भी तो नोटेशन ऐसा बैठेगा. समझो तुम m और n यूज कर रहा है, तो इधर लिखेगा वो लोग वेर m इज इक्वल टू n. समझ में आया? 3 नोटेशन है, तीनों डाल के रखो, कुछ भी पूछेगा वो लोग. चलो, इज दैट क्लियर? हाँ या ना? एनी डाउट्स? नाउ द थिंग विच वी आर डूइंग इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. प्लीज लिसन. ये टाइप नहीं है, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में इसमें हेडिंग दो अंदर. वी कॉल इट एज डायगोनल एलिमेंट्स. वी कॉल इट एज डायगोनल एलिमेंट्स. लिखो पॉइंट नंबर 1. लिखो ध्यान से. इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स हेडिंग आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही. सॉरी, डायगोनल एलिमेंट्स, नॉट मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स. उसमें अंडरलाइन करके लिखो फर्स्ट पॉइंट. इफ A, कैपिटल A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. If capital A मतलब A is a square matrix of order 2 such that, कॉमा करके अभी नेक्स्ट लाइन में लिखो ऐसा. A स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 मतलब कितना एलिमेंट्स? एलिमेंट्स कितना? टोटल 4 एलिमेंट्स. ओके, तो ये जो पहला एलिमेंट है, कैन आई से दैट इज A11. दिस विल बी ये वाला, एंड दिस इज A22. ऑर्डर इज 2 by 2. बरोबर? हाँ, तो अभी इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या होगा? मतलब वी ऑलवेज कंसीडर दीज डायगोनल एलिमेंट्स. लेफ्ट टू राइट नहीं, ऐसा नहीं सोचने का. इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूं, लिखवा ही इसलिए रहा हूं. तो कैन आई से A11, A22 आर डायगोनल एलिमेंट्स? हाँ या ना? तो अभी डायगोनल एलिमेंट्स का अगर तुम ध्यान से नोटेशन ऑब्जर्व करेगा ना, नोटेशन डायगोनल एलिमेंट्स का क्या आएगा? स्मॉल Aij वेर I इज इक्वल टू A11, A22. 2 by 2 में ऑर्डर देखो ना, यही है. मतलब I और J अगर सेम है तो वो क्या हो जाता है? डायगोनल एलिमेंट्स हो जाता है. समझ में आया कि नहीं? अरे 1 1 है, I और J सेम है, तो वही हुआ ना, I इक्वल टू J डायगोनल एलिमेंट्स होता है. क्लियर है? ऐसा. अरे मैं वही समझा रहा हूं. ये पोजीशन सेम है क्या? I और J सेम है तो नहीं हो सकता है. डायगोनल एलिमेंट्स का कंडीशन क्या है?
आई और जे सेम होना चाहिए। तो 2/2 में डायगनल एलिमेंट्स कौन सा आएगा? A11 A22। क्लियर है? यस और नो? जस्ट बिकॉज डेफिनेशन ऐसा बोल रहा है कि ये वाला ही लो, ऐसा नहीं है। डेफिनेशन क्लियर बोलता है कि तुम्हारा रो और कॉलम वाला एलिमेंट या जो नंबर है वो पोजीशन हो वो सेम होना चाहिए। आई रो एंड जे कॉलम शुड बी सेम पोजीशन। तो इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसा आता है, इसलिए हम इसको डायगोनल कंसीडर करते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। हाँ ये लिखो, ये हुआ। Point number 2, if A is a, इसमें second, if A is a square matrix of order 3, if A is a square matrix of order 3 such that, चलो अभी बताओ, अगर 3 ऑर्डर वाला है मतलब टोटल कितना एलिमेंट्स है? हाँ तो उसका पोजीशंस लिखो। A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर 31 32 33। दिस इज योर ऑर्डर 3/3। चलो तो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? A11 A22 A33 आर डायगोनल एलिमेंट्स। क्योंकि अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करेगा आई और जे इक्वल इधर ही है, इसलिए हमेशा हमारा डायगोनल ऐसा पैटर्न में ही आएगा। लेकिन कंडीशन याद रखो, व्हाई इट इज कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स? बिकॉज आई इज इक्वल टू जे। क्लियर है एवरीबडी? एनी डाउट्स? श्योर? अभी नेक्स्ट टाइप लिखो, दैट इज योर टाइप नंबर 6 है ना? 5 और स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी लिखो डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल एलिमेंट्स हमने स्पेसिफाई किया, अभी डायगोनल मैट्रिक्स लिखो। A square matrix in which all the non-diagonal elements are zero. All the non-diagonal elements are zero, then it is called diagonal matrix. Then it is called diagonal matrix. देखो, it is denoted by A is equal to DI G। ये नोटेशन है, ये तुमको सम्स में यूज नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। वो लोग तुमको ऐसा देगा, मतलब वी हैव टू अंडरस्टैंड A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्लियर है? ऐसा डिनोट करता है वो लोग, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स है। अभी इसका कंडीशन क्या है चेक करो। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोला जाएगा? जिसका नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या है? मतलब अगर मुझे डायगोनल मैट्रिक्स बताना है तो मैं ऐसे बताएगा इसको, A11 A22 A33, ये जीरो ये जीरो ये जीरो, बाकी सब जीरो। डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो। क्लियर है? डायगोनल छोड़ के बाकी सब जीरो। समझ में आया? इसका और एक नोटेशन बन सकता है,
चलो ये 3/3 किया हमने, 2/2 में भी वैसे ही आएगा, फर्क नहीं पड़ता उससे. विल डू इट इन 3/3 ओनली नाउ. नाउ अंडरस्टैंड, और एक नोटेशन कैसा आएगा? A is equal to मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट Aij. बरोबर है? नाउ लिसन टू दिस केयरफुली. ये डेफिनेशन स्टार्ट कैसे हुआ? डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखो कैसे स्टार्ट किया. हाँ, मतलब ये कंपल्सरीली क्या होना चाहिए? अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब या तो ये m इंटू एम या तो n इंटू एन. इज दैट क्लियर? ओके, अभी ये हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स का नोटेशन. अभी ये डायगोनल मैट्रिक्स है, उसके लिए हमको क्या डिनोट करना है? वेयर Aij इज, मतलब एलिमेंट इज जीरो. कौन सा एलिमेंट? तो नॉन डायगोनल के लिए क्या नोटेशन आएगा? सच दैट I इज, मतलब नॉट इक्वल टू J. I और J सेम नहीं रहेगा, मतलब नॉन डायगोनल हो गया. इज दैट क्लियर? या फिर ऐसा लिखो, चुप रे, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J. इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया? हमने क्लियरली बोला A इज अ मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट Aij विथ ऑर्डर m इंटू एम, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स. उसमें हम लोग बोल रहा है एलिमेंट जीरो है फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, मतलब जो भी I नॉट इक्वल टू J है वो सारे एलिमेंट्स जीरो है. क्लियर है? ध्यान रखो नोटेशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर है? एनी डाउट्स? समझ में आया? अच्छा, दूसरा नोटेशन सिंपल वर्डिंग्स में ये वाला है. तो ये तो हमको समझ में आ ही जाएगा कि डायगोनल मैट्रिक्स का बात कर रहा है. क्लियर? ए हाया ना? ओके, नेक्स्ट. स्केलार मैट्रिक्स. स्केलार मैट्रिक्स. स्केलार मैट्रिक्स, अभी इसका डेफिनेशन देखो शुरू कैसे होता है. और डायगोनल मैट्रिक्स, a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. A diagonal matrix in which all the diagonal elements are same is called scalar matrix. Is called scalar matrix. Example, A is a matrix of 5 0 0 0 5 0 0 0 5 और order is 3/3. चलो, what is the difference between this and diagonal matrix? डायगोनल एलिमेंट सेम होना जरूरी किसमें? डायगोनल मैट्रिक्स में. लेकिन यहां पे डायगोनल एलिमेंट सारे सेम होने चाहिए, तो वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा. इसलिए हमने शुरू कहां से किया? और डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स मतलब सारे नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए? जीरो. अच्छा, वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, मतलब बाय डिफॉल्ट कंडीशंस आ रहा है. और इधर अगर डायगोनल मैट्रिक्स सेम है तो इट बिकम्स स्केलार. क्लियर है? अब ये मैं इसलिए इतना स्पेसिफाई करके बोल रहा हूं क्योंकि तुम्हें ना मेरे साथ डिबेट करेगा व्हेन वी सॉल्व द सम्स. तुम बोलेगा सर ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी तो है. इट इज सैटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स. सर ये डायगोनल मैट्रिक्स भी तो है. इट इज सैटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ, but more precisely this becomes scalar matrix. So they expect you to write the precise answer objectives में. अगर ऐसा मैट्रिक्स दिया बोलेगा is which matrix, ऑप्शन देगा
स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, नन, तो कौन सा मार्क करेगा? नो, स्केलर मार्क करेगा. इट इज सेटिस्फाइंग द स्केलर कंडीशंस प्रॉपरली. क्लियर है? नाउ नोटेशन बोलो. चलो नोटेशन. A is equal to matrix small aij. ऑर्डर आएगा m into m, such that aij is 0 for all I not equal to j. मतलब ये नॉन डायगोनल का कंडीशन आ गया. एंड aij is equal to k for all I equal to j. मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे कांस्टेंट है एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 है. तो ये नोटेशन पैटर्न हुआ इसका. एनी डाउट्स इन नोटेशन? समझ में आया परफेक्टली? यस और नो? चलो नेक्स्ट इज 7th या 8th. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. क्या बोल रहे हैं? हाँ, लिखो लिखो. अ स्केलर मैट्रिक्स. अ स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are. A scalar matrix in which all diagonal elements are 1. 0 डालेगा तो मार्क्स भी 0 मिलेगा. In which all the diagonal elements are is called identity matrix. Is called identity matrix or unit matrix. Identity matrix or unit matrix. Clear? लिखो. It is generally denoted by. It is generally denoted by. Inverted commas में लिखो I2, I3, which means कॉमा करके लिखो नेक्स्ट लाइन में. I2 का मतलब होता है ऑर्डर 2/2, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे. एंड I3 हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. दैट इज ऑर्डर 3/3. ये 2 ही ऑर्डर आता है, उससे ज्यादा ऑर्डर नहीं आएगा. क्लियर है? यस और नो? एनी डाउट्स? समझ में आया? इसका नोटेशन बनाओ. नोटेशन क्या बनेगा? परफेक्ट. A is a matrix of elements small aij. ऑर्डर होएगा m into m, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हो है. फिर where aij is equal to 0 for all I not equal to j. और दूसरा आएगा aij is equal to 1 for all I equal to j. मतलब इतना क्लियर है कि I equal to j डायगोनल एलिमेंट्स, नॉट इक्वल टू j नॉन डायगोनल एलिमेंट्स. इतना समझ में आया? यस और नो?
Sure? Okay, come to your page number 45. Starting से मैथ्स में पेज नंबर 45 वी आर डूइंग द बेसिक नोटेशन वाला क्वेश्चन, क्योंकि टाइम ही उतना बाकी है. सॉल्यूशन में आ जाओ. विल कंटिन्यू द थियरी टुमारो. क्या बोल रहा है? नहीं नहीं, वो अलग है थोड़ा. चलो लिसन नाउ. वी आर डूइंग लास्ट 3 क्वेश्चंस फॉर द डे. एक मैं करेगा, बाकी सब तुम करेगा. लेकिन ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आता है. इसमें सबसे ज्यादा एरर्स होता है प्लस माइनस का कैलकुलेशन में. सो डू इट केयरफुली, डोंट रश. प्रेजेंटेशन देखो कैसे करेगा. क्लास वर्क का फर्स्ट सम वी आर डूइंग. क्लास वर्क 1 का फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट सब क्वेश्चन. प्लीज लिसन व्हाट दे आर आस्किंग. कंस्ट्रक्ट, listen, construct a matrix A is equal to, नहीं प्रिंट हुआ है, it should be A is equal to matrix of element small aij. ऑर्डर क्या दिया है? 3/2. मतलब मैट्रिक्स ए हमको बनाना है जिसमें 3 रो और 2 कॉलम होना चाहिए. whose element aij is given by, मतलब फर्स्ट सब क्वेश्चन में aij कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया है i माइनस जे द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई. सुनो ध्यान से, ये 2 तुम्हारा गिवन है, हा या ना? दैट इज योर फर्स्ट सब क्वेश्चन. मतलब सारे सब क्वेश्चन में ये ऑर्डर सेम रहेगा, ये चेंज होते रहेगा. क्लियर है? नाउ सबसे पहले तुमको क्या करना चाहिए? वो लोग ने तुमको मैट्रिक्स बनाने के लिए बोला है. इसमें स्पेसिफिकेशन खाली इतना है कि 3 रो और 2 कॉलम होना चाहिए. तो पहले 3 रो 2 कॉलम मतलब टोटल कितना एलिमेंट्स? 6 एलिमेंट का पोजीशन डिफाइन करो. तो यू विल फर्स्ट राइट लाइक दिस. ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ A11, A12, 13 आएगा क्या? क्योंकि थर्ड कॉलम है ही नहीं, 2 ही कॉलम होना चाहिए. फिर नेक्स्ट विल बी A21, A22, फिर A31, A32. दिस विल बी योर इक्वेशन. मतलब आ गया ये 6 एलिमेंट का पोजीशंस. अब ये 6 एलिमेंट इंडिविजुअली फाइंड करो फॉर्मूला में डाल के. ये फॉर्मूला दिया है ना, एलिमेंट ढूंढेगा कैसे? aij का फॉर्मूला में डालो. मतलब सबसे पहला एलिमेंट है A11, मतलब i की जगह पे 1, j की जगह पे 1. 1 माइनस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1. 0/4 इज 0. i1 है, j भी 1 है. क्लियर है? अरे ये 1 है ना. सेम वे A12, अभी i की जगह पे क्या डालोगे? 1 एंड j की जगह पे 2. तो 1 माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस 1. तो -1 स्क्वायर अपॉन 4, 1/4. ध्यान से कैलकुलेट करो. ऐसा कितना एलिमेंट्स करेगा? 6 एलिमेंट. हर एक सम में खाली फॉर्मूला चेंज होएगा कैलकुलेट करने का. लेके आओ चलो. A21, कुछ भी 1 स्क्वायर अपॉन 3, 1/3 आता है. A22, 2 minus 2 the whole square upon 5 minus 2, 0/3, 0. A31, 3 minus 1 the whole square upon 5 minus 3, 2 square upon 2, 4/2 ना, that is 2. तो जा घर पे. 5 minus 3, 1 square upon 2, that gives you half.
चेक करो ये 6 वैल्यू आया क्या? ये 6 वैल्यू आया। हाँ तो अभी करो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1, मतलब मैट्रिक्स बनेगा। बोलो फर्स्ट वैल्यू क्या था? फिर 1/4, नेक्स्ट इज फिर 0, फिर 2.5। ये तुम्हारा मैट्रिक्स बन गया। क्लियर? इतना करने का 3 मार्क है, लेकिन मिस्टेक है ना, ये कैलकुलेशन में होता है, बहुत लोगों का मिस्टेक होता है, प्लस माइनस और सबका मिस्टेक होता है। प्लीज डू इट केयरफुली। ये पैटर्न समझ में आया? एनी डाउट्स? सेकेंड और थर्ड सब क्वेश्चन अभी के अभी फिनिश करो। सेकेंड एंड थर्ड सब क्वेश्चन फिनिश इट ऑफ। लिखना 2 सेकेंड लगता है लिखने में, क्या लेजी बनता है। हुआ? ये सम हुआ फर्स्ट वन। कोई लिख रहा है इसको? A is a matrix of small aij of order 3/2 where small aij is I minus 3j। तो सबसे पहले A is equal to A11 A12 A21 A22 A31 A32 इक्वेशन 1। चलो लेके आओ, 6 वैल्यू चाहिए। चेक करो ये वैल्यूज आ रहा है। डू इट बाय योरसेल्फ, ध्यान से करो। फिनिश करो थर्ड क्वेश्चन। ए सेकेंड हुआ सबका? आया सबको? एनी डाउट्स? थर्ड फिनिश करो। चलो बोलो व्हाट्स द वैल्यूज। A11 कितना है थर्ड में? व्हाट इज A12? A21 64/5, तो ये भी 64/5। दिस विल बिकम, यू कैन टेक 5 कॉमन, तो आएगा 8, 27, 27, 64, 64 एंड 125। इज दैट क्लियर? यस और नो? कल का होमवर्क के लिए एन्युटी का होमवर्क 2 का 1200 में वो करके आ रहा है, 12 ही है।